तो ठीक है, एक समय ये भी आया कि हार्ट में प्रॉब्लम भी निकला. सो नाउ heart problem, diabetes, BP, cholesterol, triglycerides, and on top of that, arthritis. So a big punch for me, nice punch for me. And like many of you, medicines, etc., everything was tried, including yoga and meditation. And I'm not talking yoga that you learn on television or in the park. I'm talking of serious classical yoga. And I realized that things were not kind of coming in hand. ये चीजें नहीं हो रही थी. But somehow I was clear that because I had seen people manage their diabetes, manage their BP without medicine. Okay, I had seen that. And all of you, आपने भी सभी ने देखा होगा, कोई कुछ ना कुछ जिसको हम सो कॉल्ड, अभी तो वो डाउनग्रेडेड होते हैं, बोलते हैं उनको देसी नुस्खे, वो नहीं पता कि वो एक्चुअली असली नुस्खे भी हो सकते हैं, as opposed to whatever we are doing for ourselves, because at least they are natural. There is nothing wrong in taking a natural stuff. So I knew Swami Raj Vibhu through somebody, and I met him, and I was given Kumbhak. So I used Kumbhak practices for myself, and now it has been more than a year. I have not taken medicine for diabetes. I have not taken medicine for BP. I have not taken medicine for any heart condition, and arthritis in any case went away by itself. Okay. So what am I trying to tell you? What am I आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज हमारे अंदर होते ही है. आई मीन इफ यू लुक एट एनी क्रॉनिक एलिमेंट्स, आप कोई भी क्रॉनिक एलिमेंट ले लीजिए, वेदर इट इज ब्लड प्रेशर, हार्ट कंडीशन, डायबिटीज, थायराइड कंडीशन, इवन कैंसर, दिस इज हैपनिंग इनसाइड अस, राइट? ये हमारे अंदर हो रही है, ये बाहर से नहीं आती है. बाहर से इन्फेक्शंस आते हैं. सो इन्फेक्शंस के लिए यस, देयर आर सम मेथड्स अवेलेबल लाइक एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा, बट फॉर समथिंग इनसाइड, व्हाट डू यू डू? आप क्या करेंगे? Whatever medicine you take, whether it is for BP, whether it is for blood thinning or whatever, it just manages one aspect of the problem. वो एक aspect करती है, manage करती है, but वो हमारे system को strong नहीं करती है. तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि BP क्यों हो रहा है? किसी को high हो रहा है, किसी को low हो रहा है. क्यों हो रहा है? This is a big question. Now if you go around asking it, or if you try to get a reason for it, most people will be told what? Stress. हाँ, ये बोलते हैं ना, स्ट्रेस है, काम करते हैं तो स्ट्रेस हो रहा होगा. तो क्या आज से 200 साल पहले लोगों की लाइफ में स्ट्रेस कम था क्या, या हमसे ज्यादा था? Please answer in the chat box. Wasn't the stress much more? They had to do everything even for their daily meals. Right now everything comes to us. हमें तो सब कुछ बना बनाया मिलता है. We don't even have to climb stairs anymore. We get into an elevator and same as now. Wow. प्लीज, अच्छा एक बात करते हैं, जरा और भी पुराना चले जाते हैं, और भी पुराना अपने हिस्ट्री में चले जाते हैं. लुक एट द लाइव्स ऑफ so called deities and the god, not gods, I would say deva, devis, or so many people who went out. क्या उनकी लाइफ आसान थी? मतलब आधों को तो कोई बचपन से मारने आ गया था, किसी को 14 साल की उम्र में बाहर फेंक दिया गया था, अभी तक रियल एस्टेट प्रॉब्लम पिछले साल सॉल्व हुई है, किसी की वाइफ को कोई ले गया, अब अपने बच्चों तक को मारने की नौबत आ गई थी, और कुछ नहीं पता था कि अगला खाना कहाँ से आएगा. और हम बोलते हैं कि स्ट्रेस उनका सेम था. हमसे कहीं ज्यादा स्ट्रेस था. everyone, everything, they had to not just bring grains, they had to prepare it. घर में ही सब कुछ बनाना पड़ता था और सब कुछ करना पड़ता था. हमें तो सब कुछ बना बनाया मिलता है. तो पहले तो खाने की चॉइसेस भी नहीं होती थी. खाने की चॉइसेस हमारे अपने खुद के बचपन में देखें अगर हम, कितनी चॉइसेस थी. अभी तो इतनी चॉइसेस हैं, लोग खा खा के बीमार हो रहे हैं. द एंटायर प्लैनेट इज फॉलिंग इल बाय ईटिंग मोर. सो for something that is happening inside you, you have to work hard. You have to work upon yourself. So what is this working upon yourself? What is this working upon yourself? Working upon yourself means, तो इसको हमें, इसके लिए हमें अपना सिस्टम समझना पड़ेगा. Somebody asked what is the clinical relevance of Kumbhak. I mean, I don't get the question. I mean, are you trying to ask us that how does it fit into the clinical way of addressing blood pressure or heart condition? No, it does not fit into that at all.
वाई? बिकॉज अगर किसी को बीपी होता है या हार्ट प्रॉब्लम होती है, उसको पहले क्या बोलते हैं? स्लो डाउन, ये मत करो, वो मत करो, बैठ जाओ, टेक इट इजी। ऐसे कैसे? मतलब इट इज फाइन, मतलब उस समय वो ऐसे बोला जाता है। बट हकीकत यह है कि अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, हाई बीपी हो रहा है या लो बीपी हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ सिस्टम में ठीक नहीं है। देयर इज सम एस्पेक्ट विच इज नॉट ऑप्टिमली फंक्शनिंग। तो हमारे सिस्टम में दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। यू यू गेट दैट? आई मीन इन द सेंस दैट there are so many functions that we just don't control, including your BP or the heart functioning. वो तो अपने आप हो रहा होता है. Very few functions are voluntary. So how are you able to manage all this? And for doing all these functions, you need some kind of effort, right? हम सभी को effort तो चाहिए ही. So where is this effort coming from? Where is this effort coming from? That is the big question. Uh, so if I ask you, uh, I mean, when you lift something heavy or you push someone or pull someone, what happens? Have you noticed? आपने कभी notice किया है क्या होता है? अगर आप कोई चीज भारी उठाते हैं, so what happens? Do you know what happens? If you can respond, it will be great. Otherwise, like I said, I'm talking to a blank black screen in any case. दम भर के उठाएंगे. ओके. More energy is required. Fine. Okay. Let's just see what exactly is happening. If you notice, when you lift something heavy, even if you get up from a chair, your breath gets held. Correct? कभी आपने नोटिस किया है अपने बारे में? जब भी आप कुछ भी ऐसा काम करते हैं, योर ब्रेथ गेट्स हेल्ड. आपकी एक सांस नोइंगली और अननोइंगली रुक जाती है. यस. अगर आप किसी को खींचते भी हैं, तब भी वो रुकती है. अगर मैं आपको बोलूं एक जगह पे फोकस करें, जस्ट फोकस अपॉन अ पॉइंट, जस्ट फोकस अपॉन अ पॉइंट, टेक अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू एंड फोकस अपॉन इट, फोकस ऑन इट, you realize that again the breath will get held. You don't become breathless is because अब वो लगातार करेंगे तो ऑब्वियसली अगर सिस्टम में स्ट्रेंथ नहीं है तो आपको सांस चढ़ेगा. ओके. सो what do we do, how do we manage, what do we do? Okay. So you have to work upon your system to see how it can be done. Okay. तो मैंने ये करा और मैं इन सब कंडीशन से बाहर आया. ओके. तो ये करने के बाद एक चीज तो निश्चित हो गई कि देर इज अ वर्ल्ड विच इज ट्रीटमेंट विच इज पॉसिबल बियॉन्ड मेडिसिन. ओके. और अपने ही बारे में जानने के लिए थोड़ा सा और पढ़ा, थोड़ा सा और रिसर्च किया, तो पता चला कि वो जो मेरे को कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन दिया गया था उस समय, जो मुझे लगा था मुझे आने वाली बीमारियों से बचाएगा, वेदर इट इज डायबिटीज और हार्ट, apparently there is a direct relation between that anyone who takes cholesterol medicine will get into these problems. Also, most of us don't even understand the role of cholesterol in our body or even triglycerides in our body. कभी रिसर्च तो कीजिए ये एक्चुअली करते क्या है. ये जो चीज हमारा ही शरीर बना रहा है, हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? ओके. वो नेचुरल एक प्रोसेस है. सो दीज आर वेरियस क्वेश्चंस. किसी ने पूछा मेरा बीपी लो क्यों रहता है? आपका बीपी लो इसलिए रहता है बिकॉज राइट नाउ यू डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू क्रिएट ऑप्टिमल blood pressure. Your system does not have the strength. Okay. So how does this work? What is this Kumbhak therapy that I learned? What is this Kumbhak that helped me come out of these medicines, etc.? Before we proceed ahead, 2-3 questions I would like to place in front of you. Question number 1: do you know why you got into heart or BP condition? Do you know? Except somebody told you stress, and somebody might say, oh, it is because of genetics. बट बाप दादा से पहले तो किसी को नहीं था, 200 साल पहले. सो वेयर इज जेनेटिक्स? ओके. तो नंबर 1 क्वेश्चन. नंबर 2, आप जो भी थेरेपी लेते हैं इसके लिए, दे आर स्टैंडर्डाइज थेरेपीज.
क्या उसमें से कोई भी एक थेरेपी है जो आपके हार्ट फंक्शन को स्ट्रांग करता है? कोई भी एक ऐसी थेरेपी है जो आपके ब्लड प्रेशर का जो एस्पेक्ट है जो उसको मैनेज करता है उसको स्ट्रांग करता है? देयर इज नथिंग लाइक दैट. एंड ऑब्वियसली थर्ड इज, very few of us calculate, very few of us calculate as to how much money we are spending on medicine. Okay, सबको जीडीपी का मालूम होता है, सबको सेंसेक्स का मालूम है, सबको वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में मालूम है, पर ये भी नहीं पता कि हर महीने या पूरे साल में हम अपने ऊपर कितना पैसा खर्च करते हैं. दैट इज योर हार्ड अर्न मनी. आप पैसा इसलिए थोड़ी कमा रहे हैं कि आप एक मतलब अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए देना, अपनी सॉरी हेल्थ भी नहीं, सभी लोग तो बीपी और वो मेंटेन करते हैं, क्योंकि बीमारी को मेंटेन करने के लिए हम देते हैं. सो टू टेल अस अबाउट ऑल दिस, आई विल हैंड ओवर द सेशन to Swami Raj Vibhu, because he's the person who has designed Kumbhak for these times. Okay, he's the person who has invested his life in understanding human mechanics, which is the reason why he is able to offer customized Kumbhak methods to every individual who comes to the program. So this webinar is about an online program, the details of which will be given to you a little later. I'll hand over the session to him. Just give me a moment, please. Am I audible? आवाज आ रही है मेरी? Okay. So, blood pressure and heart disease. So there is a recent research. अभी जो फिलहाल में एक रिसर्च, आपने वो न्यूज सुना ना? Somebody of a film industry or what, me, है ना, यंग एज में ही वो बंदा हार्ट अटैक हो गया उसको. ऐसा सुना आपने? अभी रिसेंटली कोई, मेरे ख्याल से बिग बॉस वगैरह में कोई पार्टिसिपेट किया था उसने, एंड सम काइंड ऑफ अ सेलिब्रिटी, एंड he was just in his 30s or toward late 30, 40s की तरफ में था. यस, हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला, यस, 41 years, हार्ट अटैक, खत्म हो गया. Now he was very very active in terms of physicality, बॉडी बिल्डर टाइप था ना वो. तो एक्सरसाइज करके बचा लेंगे क्या आप अपने आप को? नाउ दिस इज नॉट द लोन केस, अकेला केस नहीं है. देयर इज अ स्टडी, एक स्टडी आ गई अभी, वो कहती है कि यंगस्टर्स को आजकल ज्यादा हार्ट अटैक रहा. 50% हार्ट अटैक इज हैपनिंग टू यंगस्टर्स. अब क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे? सो हमने तो यू हैव टेकन ऑल द एडवाइसेस ऑफ डॉक्टर फ्रॉम द चाइल्डहुड, बचपन से लेके अभी तक सारे एडवाइस लिए ना. स्टिल द प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग डाउन, इट इज इंक्रीजिंग ओनली, बढ़ ही रहा है. एंड सपोज टुमारो अ थियरी कम्स, इस कल को एक थियरी आती है, वो थियरी आती है कि बिकॉज ऑफ द ब्लड प्रेशर मेडिसिन द एज ऑफ हार्ट रिड्यूसेस, हार्ट का एज रिड्यूस हो जाता है. एंड नाउ there are certain studies which says collaterals and blockages in heart is good. Blockages and collaterals are good. अभी भी recent study में है, अभी तो उसको बाहर नहीं आया, but you will see that in 5 years. अगले 5 से 10 साल में आपको ये सब खबर बाहर आने लग जाएगी. Then what will happen to the medicine that you have taken for 10 years, 20 years, 30 years? तब तो गलत हो जाता है वो सारा का सारा. एंड हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, बताइए? सो कीप योर माइंड्स ओपन. व्हाट वी आर सेइंग, कीप योर माइंड्स ओपन. अभी थोड़ा दिमाग को खोल के रखेंगे. एंड आई विल प्रूव यू दैट यू आर मोर वाइज देन यू थिंक. आप जितने सोचते हैं ना कि समझदार हैं, उससे ज्यादा समझदार हैं, राइट? तो पहली बात, व्हाट इज अ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या होता? लेट्स डिफाइन इट अ प्रॉब्लम. ये जो ब्लड प्रेशर या हार्ट डिसीज है, ये इन्फेक्शियस है क्या? इन्फेक्शन होता है क्या? नो, इट इज नॉट इन्फेक्शन. तो इट इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. इसको क्रॉनिक डिजीज भी कहते हैं. सो व्हाट इज क्रॉनिक डिजीज? समथिंग हैज गॉन वीक इनसाइड यू. कोई एक ऑर्गन कमजोर हो गया.
यस और नो? अगर ब्लड प्रेशर देखना, यू नो, इफ यू गेट इनटू किडनी डिजीज होगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा. So some organ, if it doesn't function properly, your blood pressure will increase. If your liver doesn't function properly, liver ठीक से काम नहीं करेगा तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा. Either it increases, usually it increases. If you are healthy enough, it will decrease also. It can decrease. अगर आप हेल्दी हैं तो वो कम भी हो सकता है. अगर आप हेल्दी नहीं है तो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा. So what is disease? Disease को डिफाइन करें थोड़ा. Some organ has become weak inside. कोई ऑर्गन या कोई फंक्शन कमजोर हो, सीधे सीधे तरीके से. यहां पे आप कोरिलेट कर रहे हैं, आप मेरे साथ में हैं, इन्फेक्शन तो हुआ नहीं ना, तो कोई अंदर का ऑर्गन या कोई कामकाज फंक्शन कमजोर हो गया. यस और नो? हाँ या ना? इसके अलावा कोई और चीज है? नहीं. कोई एक ऑर्गन और कोई एक फंक्शन कमजोर हो. अब आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई को, एजुकेशन को थोड़ा साइड रख के सोचते हैं, बच्चे के दिमाग से सोचेंगे. जस्ट थिंक फ्रॉम अ चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू. कोई चीज कमजोर हो जाती है, इफ समथिंग बिकम्स वीक, व्हाट इज द सोल्यूशन? एक बच्चे के दिमाग से सोचो, उसको स्ट्रांग करना. इफ समथिंग बिकम्स वीक इनसाइड यू, व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या है? टू स्ट्रेंथन इट, उसको स्ट्रांग करना, उसको स्ट्रांग करना. और कोई सोल्यूशन है? और कोई सोल्यूशन तो है नहीं. टेल मी कि आपका जो फंक्शन अंदर वीक हो गया, वट एवर द फंक्शन और द ऑर्गन हैज बिकम वीक, आप उसको स्ट्रांग करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया, एक्सरसाइज से तो नहीं स्ट्रांग होगा, अभी प्रूव भी कर दूंगा मैं. जो ऑर्गन कमजोर हो गया आपके अंदर, इफ सम ऑर्गन हैज बिकम वीक इनसाइड यू, व्हाट आर यू डूइंग टू स्ट्रेंथन द ऑर्गन? नोबडी इज डूइंग एनीथिंग. आप अच्छा खाना खा के ऑर्गन स्ट्रांग होता है क्या? स्ट्रांग नहीं होता. आपके सिम्टम कम हो जाएंगे, तकलीफ कम होगी. आप अपने पूर्वजों से बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं ना, 10 तरीके के फ्रूट्स खाते हैं, 20 तरीके के सीड्स खाते हैं. हमारे को तो खाना, भोजन हमेशा अवेलेबल होता, पहले तो इतना मिलता भी नहीं था. सो भोजन करके किसी ने अपना हार्ट को स्ट्रांग तो आज तक नहीं किया, तो उससे हार्ट तो स्ट्रांग नहीं होगा. आपको सपोर्ट मिल जाएगा, ब्लड प्रेशर थोड़ा कम दिखाई दे सकता, मगर हार्ट स्ट्रांग नहीं होगा, लिवर स्ट्रांग नहीं होगा, किडनी स्ट्रांग नहीं होगा. So by eating something you can't make your organ strong, और by taking any medicine, दवाई लेके क्या स्ट्रांग हो जाएगा? और कमजोर हो जाएगा बॉस. 100 साल पहले किसी को हार्ट डिजीज नहीं था, आज क्यों हार्ट डिजीज बढ़ रहा है? बिकॉज वी आर टेकिंग incessant यूज ऑफ what you call as chemical medicine. अभी उसकी बारे में बात करें, बट इस पॉइंट पर टिके रहते हैं. Unless and until you strengthen an organ and function, you cannot come out of disease. फिजिकल एक्सरसाइज करके आप नहीं निकल सकते. ये आपके एग्जाम्पल्स ही बता रहे हैं, और मैं भी बताऊंगा कि क्यों नहीं निकल सकते. सो टेल मी, स्ट्रॉन्ग करना है तो कैसे करना है? हाउ टू स्ट्रेंथन समथिंग विच हैज बिकम वीक? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बॉडी. शुरुआत कहां से करते हैं? शरीर से शुरुआत. आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जितने लोग जिनका की राइट हैंड स्ट्रांग है? कितने लोग हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव योर राइट हैंड स्ट्रांग? लिफ्ट योर राइट हैंड. एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव योर लेफ्ट हैंड स्ट्रांग? बायां हाथ किसका मजबूत है? हाउ डिड यू डू इट? ये आपने कैसे किया? व्हेन यू वर बॉर्न, जब आप पैदा हुए थे तब तो ऐसा कुछ नहीं था. यू डिड इट. एक हाथ ज्यादा स्ट्रांग कर दिया दूसरे से, एक पांव ज्यादा स्ट्रांग कर दिया दूसरे से. यू डिड इट, आपने किया, पर कैसे किया? हाउ डिड यू डू इट? एक्सपेरिमेंट करें. सो विल डू सम एक्सपेरिमेंट्स टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स. सच्चाई जानने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना? तो कैसे किया? तो आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया होगा. यू मस्ट हैव वर्कड विद दैट हैंड, इजंट इट? पर काम कैसे किया? हाउ डिड यू वर्क? सो लेट्स सी हाउ डू वी मेक एफर्ट. काम तो एफर्ट लगा के ही होता है ना. यू मेक एन एफर्ट एंड डू सम वर्क. तो हाउ डू यू मेक एफर्ट? जरा समझे. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डू वी मेक एफर्ट. एफर्ट लगाते कैसे हैं, पहले समझ ले.
So keep your left palm like this. अपने बाएं हथेली को ऐसे रखें. Make a fist from the right hand. दाएं हाथ से मुट्ठी बांधेंगे. Now push your left palm. अपने बाएं हथेली को पुश करें, जोर लगाएं, पुश करें, धक्का दें. यू आर क्रिएटिंग एफर्ट. आप एफर्ट बना रहे हैं ना, एफर्ट लगा रहे हैं. कैसे एफर्ट लगा रहे हैं? ये जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं ऑफ पुशिंग योर लेफ्ट पाम, यू आर क्रिएटिंग सम स्ट्रेंथ एंड मेकिंग सम एफर्ट. जोर लगा रहे हैं आप. ये जोर कैसे लगा रहे हैं? मसल्स, बोन्स, माइंड, नर्वस सिस्टम, ये वो ऐसा कुछ 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 आपके दिमाग में आ रहा हो. नो नो नो, यू आर नॉट लुकिंग इन द राइट डायरेक्शन. सही दिशा में नहीं देख रहे. करें वापस से. वेरेवर आई एम इंडिकेटिंग, जस्ट लुक देयर. जहां मैं बता रहा हूं वहां देखना. लेट्स डू इट अगेन. पुश इट हार्ड. जोर लगाएं जरा. सी, द मोर हार्ड यू वांट टू पुश, द मोर यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ. जितना जोर लगाना होता है उतनी सांस रोकनी पड़ती है आपको. यस और नो? सांस रोकनी पड़ती है. सो हैव यू पुल्ड एनीबडी? किसी को खींचा, रस्सा कस्सी खेलिए, टग ऑफ वॉर, खींचा है कभी किसी को? तो क्या करें? उंगलियों का फंसा लें ऐसे. जस्ट क्लास्प योर फिंगर्स लाइक दिस एंड पुल. खींचिए, पुल. सी, यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ. सांस रोकनी पड़ती है. पुश करने के लिए भी सांस रोकना पड़ता है, पुल करने के लिए भी सांस रोकना पड़ता है. When you get up from the chair, चेयर से उठते ना, आवाज करते ना, क्या किया? What did you do? You held your breath. सुबह उठ के अंगड़ाई लेते हैं. मॉर्निंग यू गेट अप एंड टेंस योर बॉडी. अंगड़ाई लेते हैं. हाउ डू यू टेंस योर बॉडी? टाइट कीजिए शरीर को. टेंस योर बॉडी. यू होल्ड योर ब्रेथ. यस और नो? सुबह से लेके शाम तक आप कोई भी काम करें, वॉट एवर यू डू थ्रू आउट द डे, वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, क्लाइंबिंग स्टेयरकेसेस, हाउस होल्ड वर्क, शरीर को जहां इस्तेमाल करते हैं, you make effort by holding your breath in variable proportion behind. अलग अलग अनुपात में आप सांस रोक के सारे काम करते हैं. ठीक है? नाउ लिफ्ट योर स्ट्रॉन्ग हैंड अप. अपना जो जी स्ट्रॉन्ग हैंड है ऊपर उठाइए. लेफ्ट और राइट, विच एवर, जो भी है, बाया दाया. और टेंस इट टाइट. इसको बहुत टाइट कर दें. टाइट करें. देखिए, आप सांस रोकते हैं और उस हाथ की तरफ में दिशा दे देते हैं. ये तो लूज है ना दूसरे वाला. यू हेल्ड योर ब्रेथ एंड गेव इट अ डायरेक्शन. एक दिशा दे दिया. रिलैक्स करें. एक और एग्जांपल समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए. आप जिम जाते ना, पीपल गो टू जिम एंड बिल्ड मसल्स. मसल बिल्ड कर लेते ना लोग जाके. हाउ डू दे बिल्ड मसल? मसल कैसे बिल्ड करते हैं? सपोज यू गो टू द जिम एंड लिफ्ट अ डंबल विद द राइट हैंड. दाएं हाथ से डंबल उठाएं केवल फॉर 1 मंथ. 1 महीने तक कीजिए. दाएं हाथ से डंबल उठाएं. हाउ विल यू लिफ्ट द वेट? वेट को कैसे उठाएंगे? बाय होल्डिंग द ब्रेथ. सांस रोक के. और दूसरी चीज क्या इस्तेमाल करेंगे? व्हाट इज द सेकेंड थिंग दैट यू विल यूज? मसल्स. सांस रोकना, मसल्स. द डायरेक्शन ऑफ ब्रेथ होल्ड विल गो टुवर्ड्स दोज मसल्स. उसी तरफ में जाएगा डायरेक्शन, और वो हाथ ही स्ट्रांग होगा, दूसरा नहीं होगा. सो व्हाट इज द स्ट्रेंथ क्रिएटिंग मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी? शरीर का स्ट्रेंथ बिल्ड करने का तरीका क्या है? ब्रेथ होल्ड, डायरेक्शन. ब्रेथ होल्ड, डायरेक्शन. अगर आप शरीर को इस्तेमाल करते हैं, इफ यू यूज योर बॉडी, वेयर डज द डायरेक्शन गो? डायरेक्शन कहां जाता है? शरीर की तरफ में. शरीर की तरफ में जाता है ना. अगर आप शरीर इस्तेमाल नहीं करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन. आप क्लास करें नहीं करें, क्या करते हैं लाइफ में, वो आपकी जिम्मेदारी है, मगर आपको समझ में जरूर आना चाहिए. सो इफ यू डू नॉट यूज योर बॉडी, यू होल्ड योर ब्रेथ, सांस रोक लें, शरीर को की तरफ डायरेक्शन ना दें, शरीर को स्टैच्यू बना लो सांस रोक के. व्हाट विल हैपन? क्या होगा? हार्ट रेट इंक्रीज होगा. विल योर हार्ट रेट इंक्रीज? पसीना आने लग जाएगा. इन सम टाइम यू विल स्टार्ट स्वेटिंग. मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा. टेम्परेचर बढ़ जाएगी बॉडी की. फंक्शनिंग विल इंक्रीज. तो आपने तो कोई डायरेक्शन नहीं दिया ब्रेथ होल्ड को. यू डिडंट गिव अ डायरेक्शन.
Where did it go? कहां चला गया डायरेक्शन? If your heart rate increased, the direction went inside. Yes or no? आपने बाहर नहीं दिया डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कहां चली गई? आपने बाहर नहीं दिया तो अंदर चली गई ना डायरेक्शन. It went inside. If it went inside, it can strengthen whatever, wherever it got implemented. जहां भी लगेगी वहां उस चीज को स्ट्रॉन्ग कर देगी, क्योंकि मैकेनिज्म है स्ट्रेंथ क्रिएट करने का. सवाल अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, एक्सरसाइज करके तो आप हार्ट की तरफ में डायरेक्शन नहीं देते ना. When you do exercise, you don't give the direction towards your heart or lung or liver or kidney or thyroid or metabolism. वहां तो नहीं दे रहे ना डायरेक्शन. कहां दे रहे हैं? बाहर की तरफ में दे रहे हैं. तो आपका हार्ट स्ट्रांग हो जाएगा क्या एक्सरसाइज करके? वहां डायरेक्शन नहीं देंगे तो नहीं होगा स्ट्रांग. बॉडी बिल्ड हो जाएगी, ऑर्गन स्ट्रांग नहीं होंगे. मैं आपको बता रहा हूं क्यों हो रहा है ये. बिकॉज इवन दो यू आर इंक्रीजिंग द मसल बल्ज, आप मसल तो फुला लेते हो, मगर हार्ट तो उसको संभालने के लायक नहीं बनाया आपने. लिवर तो उसको संभालने के लायक नहीं बनाया आपने. तो अगर आप बिना हार्ट को, लिवर को स्ट्रांग किए मसल बना देते तो और जल्दी हार्ट अटैक आए, क्योंकि वो संभाल ही नहीं पाएगा आपका शरीर. इंजन आपने मारुति 800 का रखना है और गाड़ी चलानी है 150 की स्पीड पे, तो नहीं चलेगी गाड़ी. इंजन की पावर बढ़ानी पड़ेगी, आपके हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, आपकी फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑर्गन की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी. वो तो आप में से कोई भी नहीं कर रहा, और वो तो एक्सरसाइज करने वाले लोग नहीं कर रहे. वो तो एक्सरसाइज करने वाले लोग नहीं कर रहे. सो वो कुंभक थेरेपी है. इफ वी डायरेक्ट द ब्रेथ होल्ड टुवर्ड्स एन ऑर्गन विदाउट मूविंग द बॉडी, इट विल स्ट्रेंथन दैट ऑर्गन. तो कोई चीज आपके अंदर अगर वीक हो गई है, सो व्हाट डू वी डू? हम करते क्या है? सबसे पहले हम कस्टमाइज करते हैं. वी डू समथिंग कॉल्ड डायग्नोसिस, वो भी आपको बताता हूं मैं. बट वी डिजाइन कुंभक थेरेपी इन सच अ वे कि वो आपके ऑर्गन की तरफ में उसकी डायरेक्शन मिले और ऑर्गन स्ट्रांग हो. दिस इज पार्ट 1. ये मैंने इस वेबिनार का पार्ट 1 बताया आपको. लेट्स गो टू पार्ट 2. दूसरे पार्ट पे चलते हैं. सो अभी मैं आपको प्रूव करूंगा कि आप ज्यादा समझदार हैं. जितना समझते हैं ना उससे ज्यादा समझदार हैं. आपके बॉडी को किसने डिजाइन किया था? टेल मी. यू मस्ट इन्वॉल्व योरसेल्फ. लिखना है, चैट बॉक्स में डालना है. विच डॉक्टर, विच साइंटिस्ट डिजाइंड योर बॉडी? आपके शरीर को कौन से डॉक्टर ने, कौन से वैज्ञानिक ने डिजाइन किया था? आप जरा डालिए. मालविका जी, अगर आपने डिजाइन किया था तो आप ठीक क्यों नहीं कर लेते अपने आप को? फिर तो आप ठीक कर सकते हैं. गॉड. और क्या है बाकी लोगों की? क्या अभी थोड़ा चर्चा करेंगे, नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा? हाउ विल गेट टू नो? जीन्स तो आपको मालूम नहीं, किसी ने बताया है. पेरेंट्स, आप पेरेंट को पूछ लेंगे तो बोलेंगे कि नहीं नहीं हमें नहीं मालूम. सो वॉट एवर योर आइडिया, पुट डाउन. लिखिए तो सही. सेल्फ डिजाइन है, सेल्फ डिजाइन से काम नहीं चलता. सो मेनी पीपल आर सेइंग गॉड एंड मेनी पीपल आर सेइंग अदर थिंग्स. जीन्स नहीं, आपको मालूम नहीं है जीन्स ने डिजाइन किया. यू हैव रेड इट, आपने पढ़ा है, आपको थोड़ी मालूम. बट एवरीबडी ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू नोज हु डिजाइंड योर बॉडी. मैं यही बताने वाला हूं आपको. आप में से हर एक इंसान को मालूम है कि आपके शरीर को किसने डिजाइन किया. अगर गॉड बोलते हैं तो कितने लोगों ने गॉड को चाय पिलाया घर में? नहीं, किसी ने नहीं पिलाया. ना तो फोन नंबर, ना तो एड्रेस, कुछ आता पता ही नहीं है. आपकी ट्रेनिंग कर दी गई है वैसे ऐसे गॉड 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 करके. बट अगर किसी इंसान को देखते हैं, इफ यू सी समवन, इफ यू सी एन अफ्रीकन, अगर इस वेबिनार में, इन दिस वेबिनार, इफ देयर इज एन अफ्रीकन, द कैमरा इज ओपन. आपने तो बंद कर रखे हैं कैमरा बहुत लोगों ने. कम से कम इन्वॉल्व तो हो. सो अगर कैमरा ओपन है, इफ यू सी एन अफ्रीकन, व्हाट डू यू से द मोमेंट यू सी दैट पर्सन? ओ अफ्रीकन.
देखते ही आपको आइडिया लग जाता है कि इसकी बॉडी को किसने डिजाइन किया। चाइनीज। आर यू साउथ इंडियन? क्या आप साउथ इंडियन है? आर यू फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट? क्या आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं? इंसान को देखते ही आपको पता चल जाता है किसने डिजाइन किया उसको। यस और नो? शरीर देख के आप बता देते हैं ये कहां से बिलोंग करता होगा। यस और नो? सो व्हेन यू से अफ्रीकन, जब आप अफ्रीकन बोलते हैं, हु डिजाइन्ड हिज बॉडी? किसने डिजाइन किया? अफ्रीका ने किया ना। अफ्रीका, व्हाट इज अफ्रीका? इट्स एन एनवायरमेंट, एक वातावरण है। अलग अलग तरीके के वातावरण अलग अलग लोगों को डिजाइन करते हैं, हाँ या ना? तभी तो आप अलग अलग बनते हैं, अलग अलग शरीर बन रहे हैं। कभी कोई इंडियन है, कोई अफ्रीकन है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, हाँ या ना? यस और नो? आप जानते ही हैं, यू ऑल नो हु डिजाइन्ड योर बॉडी। मगर एजुकेशन हो गई ना आपकी अलग तरीके की, इसीलिए ध्यान नहीं आता यहां पे। इस तरफ में हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं आता, विजडम की तरफ ध्यान नहीं आता, समझदारी की तरफ ध्यान नहीं जाता। तो आप लोग, मैं बता रहा हूं, आप लोग बहुत समझदार हैं, जितना समझते हैं उससे ज्यादा समझदार। सो एनवायरमेंट डिजाइन्स द बॉडी। तो व्हाट इज दिस बॉडी डिजाइन्ड फॉर? ये शरीर कैसे डिजाइन हुआ है वो तो समझेंगे ना, ये तो समझेंगे ना। सो दिस बॉडी इज डिजाइन्ड फॉर नेचुरल फूड। ये शरीर प्राकृतिक भोजन के लिए डिजाइन हुआ। आप खा क्या रहे हैं? व्हाट आर यू ईटिंग? कुक्ड, प्रोसेस्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, पैकेज्ड, ऑल्टर्ड फूड खा रहे हैं ना। व्हाट आर यू ईटिंग? ऑल्टर्ड फूड। दिस बॉडी इज डिजाइन्ड फॉर नेचुरल सराउंडिंग, प्राकृतिक आसपास का वातावरण हो, इस चीज के लिए डिजाइन हुआ। यू नो वी हैव डिस्ट्रॉयड द एनवायरमेंट बाय 80%। वातावरण को 80% बर्बाद कर दिया हमने। 80% प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट। विलुप्त हो गए 80% जीव जंतु पेड़ पौधे। एवरीथिंग गॉट पोल्यूटेड, सब कुछ पोल्यूशन हो गया ना। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, व्हाट नॉट। पानी कहां है? रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स में पानी खत्म। जमीन के नीचे कहां गया? फ्रॉम 50 फीट टू 5000 10,000 फीट डाउन। ऑल्टर्ड एनवायरमेंट। कैसे एनवायरमेंट में रह रहा है? व्हाट काइंड ऑफ एनवायरमेंट वी आर लिविंग इन? बदला हुआ वातावरण, ऑल्टर्ड एनवायरमेंट। अब तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब आप लोग बहुत समझदार हैं, यू आर वाइज। अब मुझे बताइए, वॉज योर बॉडी डिजाइन्ड फॉर केमिकल मेडिसिन? क्या आपका शरीर केमिकल दवाइयों के लिए डिजाइन हुआ था? अगर आपके घर में पेट्रोल की गाड़ी है, इफ यू हैव अ पेट्रोल व्हीकल एट होम, उसमें डीजल या केरोसिन डालेंगे? विल यू पुट डीजल और केरोसिन एज अ फ्यूल? नहीं डालेंगे ना। व्हाई? कॉमन सेंस। द इंजन इज नॉट डिजाइन्ड फॉर डीजल और केरोसिन। इंजन का डिजाइन पेट्रोल के लिए है तो पेट्रोल डालेंगे। जब ये बॉडी को इस्तेमाल करते हैं, व्हेन यू यूज दिस बॉडी, वेयर डज दिस कॉमन सेंस गो? ये कॉमन सेंस कहां जाता है? जब ये दवाई के लिए डिजाइन ही नहीं है तो ये दवाई खा के बीमार होगा। मोर मेडिसिन मोर डिजीज। पिछले 50 सालों में दवाई बढ़ गई, बीमारी बढ़ गई, हाँ या ना? ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? इंक्रीजिंग। डायबिटीज इंक्रीजिंग। हाइपोथायराइडिज्म इंक्रीजिंग। कैंसर increasing, infertility increasing, mental issues, psychological problems increasing, more medicine, more disease. yes or no? कब आंखें खोलेंगे? 4 साल के बच्चे इंसुलिन ले रहे हैं, 4-year-old kid taking insulin, people are getting into heart disease in early ages, ब्लड प्रेशर इश्यू कॉमन होता जा रहा है। कब आंखें खोलना है? जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वेबिनार, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वेबिनार। मैं बता रहा हूं, आप लोग ज्यादा समझदार हैं, जितना समझते हैं ना उससे ज्यादा समझदार हैं, बट समझदारी का इस्तेमाल करेंगे। यूज योर विजडम, नॉट योर एजुकेशन। अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें, एजुकेशन का इस्तेमाल थोड़ा साइड में रखें ताकि आपको दिखाई दे चीजें ठीक से। सो when you don't do your heart function तो आप नहीं करवा रहे ना, you are not doing your heart function or liver function, are you doing?
नहीं, यू आर नॉट डूइंग, आप नहीं कर रहे, तो कौन कर रहा है? हु इज डूइंग योर हार्ट फंक्शन? तो देयर आर सर्टन फोर्सेस, कुछ शक्तियां हैं, कुछ फोर्सेस हैं आपके अंदर जो ये काम करवाते हैं. सो आई कैन कॉल देम, आई कैन नेम देम ऑल्सो, बट आपकी ट्रेनिंग नहीं है ना उस तरीके से, तो आपको मालूम भी नहीं चलेगा. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज दक्षिणाग्नि. देयर इज अ फोर्स कॉल्ड दक्षिणाग्नि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हार्ट हेल्थ. देयर इज अनदर फोर्स कॉल्ड व्याना विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड प्रेशर. एक्चुअली में तो ब्लड प्रेशर जैसी चीज होती नहीं है, इट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर और प्रेशर ऑफ द टिश्यूज. वो भी आपको आगे चल के पता चलेगा, वो 5-6 साल 10 साल के अंदर ये सब चीजें जब बाहर निकल के आएंगी तब पता चलेगा. बट देर आर सर्टन फोर्सेस. ठीक है. अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं. आई विल टेक एन एग्जाम्पल सो दैट यू गेट इट वेरी क्लियर, समझ जाए आप सबको मालूम है ना, पृथ्वी अपने तरफ में खींचती है आपको, गुरुत्वाकर्षण होता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रेविटी. ग्रेविटी पुल्स यू डाउन, ग्रेविटी की वजह से आप पृथ्वी की तरफ में खींचे रहते. सो टेल मी वन थिंग, व्हाई डू यू ग्रो टॉल अगेंस्ट ग्रेविटी? आप गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में क्यों ऐसे लंबे हो जाते हैं? व्हाई डू ट्रीज ग्रो अप? एक पेड़ पौधे ऐसे ऊपर की तरफ में गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऐसे लंबे कैसे हो जाते हैं? व्हाई डू बर्ड्स फ्लाई? पक्षी ऐसे ग्रेविटी के विरुद्ध में उड़ने क्यों लग जाते हैं? So the answer is they must be making an opposite force. जोर लगा रहे होंगे ना उल्टी दिशा में, हाँ या ना? आप लंबे क्यों हो रहे हैं? जो उल्टी दिशा, ऊपर की ओर जोर लग रहा होगा कहीं शरीर में, एक फोर्स होगा जो ऊपर की ओर पुश कर रहा है आपको. दिस फोर्स इज कॉल्ड एज उदाना. इस फोर्स को कुंभक विज्ञान में हम कहते हैं उदाना, है ना? उदाना कहते हैं. आपने सुना वर्ड, हैव यू हर्ड दिस वर्ड उड़ान, उड़ना, टू फ्लाई? दिस कम्स फ्रॉम द रूट उदाना. उदाना रूट से ये निकल के आए हैं वो शब्द. सो दिस इज एन अपवर्ड थ्रस्टिंग और अपवर्ड पुशिंग फोर्स इन. सपोज कीजिए ये फोर्स कमजोर हो गया आपके अंदर, आप उठा नहीं पा रहे अपने आप को ठीक से. हाउ विल यू फील ऑन द बॉडी? शरीर पे कैसा फील करेंगे? हैवीनेस, हैवीनेस इन द बॉडी, हैवीनेस होगा आपके शरीर में. वेयर विल दैट हैवीनेस इंपैक्ट? उस हैवीनेस का असर कहां पे होगा ये बताइए. अच्छा, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं ना आप लोग, स्ट्रेस, STRESS. डू यू इवन नो व्हाट इज स्ट्रेस? आप सोचते हैं सिचुएशन में स्ट्रेस है. स्ट्रेस सिचुएशन की वजह से आता है. पुट 10 पीपल इन द सेम सिचुएशन, 10 लोगों को सेम सिचुएशन में डाल दो, 5 को स्ट्रेस होगा, 5 को नहीं होगा. सिचुएशन में स्ट्रेस नहीं है, आपकी क्षमता उसको हैंडल करने की नहीं है. योर इनएबिलिटी टू हैंडल अ सिचुएशन इज कॉल्ड एज स्ट्रेस. तो अगर आप भारी महसूस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस, इजंट इट? बट भारी क्यों महसूस करेंगे? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ उदाना फोर्स. उदाना फोर्स, ऊपर उठाने वाला फोर्स कमजोर हो गया, तभी आप भारी महसूस करेंगे. देन ओनली यू विल गेट इनटू स्ट्रेस एंड देन यू विल गेट इनटू हार्ट डिजीज और जॉइंट इश्यूज. जॉइंट पे भी असर आता है ना, कई लोगों को जॉइंट के इश्यूज बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? इफ यू फील हेवी ऑन द बॉडी, योर जॉइंट्स विल गेट इंपैक्टेड, योर हार्ट विल गेट इंपैक्टेड. नॉट ओनली हार्ट, एवरी फंक्शन ऑफ योर बॉडी विल गेट इंपैक्टेड. दूसरी चीज, हाउ विल यू फील इन योर माइंड? बॉडी और माइंड तो जुड़े हुए हैं ना, तो हैवीनेस फील कर रहे हैं बॉडी में, तो माइंड में कैसा हैवीनेस होगा? माइंड में भी हैवीनेस होगा ना. यू विल फील हैवीनेस इन द माइंड. दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेस और डिप्रेशन. इसको डिप्रेशन भी कहते हैं, है ना. लो मूड, मूड लो हो रहा है, हैप्पीनेस कम हो रही है, आपके अंदर खुशी नहीं आ रही. सो दिस इज वन फोर्स आई हैव टॉक्ड अबाउट. एक फोर्स के बारे में बात किया. देयर आर 84 फोर्सेस, 84 अलग अलग तरीके के फोर्स होते हैं विच मेक्स योर हार्ट एंड लिवर एंड अदर थिंग्स फंक्शन. वो फंक्शन करवाते हैं. इफ यू लूज स्ट्रेंथ ऑफ एनी ऑफ दीज, इनमें से किसी की भी स्ट्रेंथ आपके अंदर कमजोर हो जाती है, then you will get into issues. So we diagnose you for that. हमारा काम क्या है? आपका डायग्नोसिस. This is a diagnosis. This is not a medical diagnosis. हम इसे कहते हैं प्राण शक्ति डायग्नोसिस. कौन सा फोर्स वीक हो गया? We diagnose you first.
then because of that weak force, what organs has got compromised? कौन से organs weak हो गए, कौन से functioning weak हो गई, इसका डायग्नोसिस करके वी कस्टमाइज अ कुंभक मॉड्यूल, हम कस्टमाइज करते हैं आपके लिए, हर इंडिविजुअल के, हर एक के लिए, टू स्ट्रेंथन दैट वीक फोर्स, वो जो कमजोर फोर्स है उसको स्ट्रॉन्ग करना, उस ऑर्गन को जो वीक हो गया उसको स्ट्रॉन्ग करना, वो फंक्शन जो वीक हो गया उसको स्ट्रॉन्ग करना, एंड देन ओनली यू कैन कम आउट ऑफ योर प्रॉब्लम, और आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो प्रॉब्लम से निकल। तो दिस इज कुंभक थेरेपी इन टोटल, डायग्नोसिस एंड कस्टमाइजेशन, ये कुंभक थेरेपी इन टोटल मैंने आपको बताया। Now कुंभक is the way, कुंभक थेरेपी is not yoga, it is not प्राणायाम। क्यों? आपको योगा से क्या मिलता है? समाधि मिलती है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, क्या मिलेगा योगा से? समाधि मिलेगी। तो हम आपको समाधि नहीं देंगे, तो उसके लिए आप योगा करो, समाधि चाहिए तो। निर्वाण मिलेगा अगर ध्यान करेंगे, तो विपश्यना करेंगे तो निर्वाण मिलेगा। निर्वाण लेना है, अब जाके विपश्यना कीजिए, ध्यान कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। हम क्या करेंगे? आपको हेल्थ देंगे, बस इतनी सी बात। आपके सिम्टम खत्म हो जाएंगे, आपका शरीर स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आगे आने वाली बीमारियों को रोक देंगे, आप अपनी लाइफ को और एक्टिव बना सकते हैं, आपके सिम्टम सारे खत्म हो जाए। तो कुंभक को हम समाधि के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे, निर्वाण के लिए, कैवल्य के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट, ऐसी चीजों के लिए हम नहीं कर रहे, हेल्थ के लिए कर रहे। तो इट इज कुंभक थेरेपी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, कुंभक कैन बी डन इन थाउजेंड्स ऑफ वेज, हजारों तरीके से कुंभक किया जा सकता है। देयर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ मेथड, बट कुंभक इज एन एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये मानव शरीर का एफर्ट लगाने का तरीका है। तो क्या मैं बोल रहा हूं तो क्या मैं एफर्ट नहीं लगा रहा? तो मैं कुंभक कर रहा हूं, आई एम डूइंग कुंभक। व्हेन आई फोकस ऑन समथिंग, जब मैं किसी चीज पे ध्यान देता हूं तो क्या मैं कुंभक नहीं कर रहा, एफर्ट नहीं लगा रहा? आई एम डूइंग कुंभक। जब मैं कुछ सुन रहा होता हूं बड़े ध्यान से, तो क्या मैं एफर्ट नहीं लगा रहा सुनने का? जब मैं सपना भी देख रहा हूं तब भी एफर्ट लगा रहा हूं, हाँ या ना? तब भी आपकी एनर्जी खर्च हो जाती है, तो आप कुंभक कर रहे हैं। तो कुंभक अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, सांस को रोक के भी किया जा सकता है, आवाज से भी किया जा सकता है, फोकस से भी किया जा सकता है, स्मेल से भी किया जा सकता है, साउंड को सुनने से भी किया जा सकता है, इमोशन से भी किया जा सकता है, और मैं बहुत सारे बता सकता हूं उसके बाद। लेकिन हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, अभी एक कुंभक करेंगे जिसमें हम दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे, ब्रेथ एंड साउंड। दो चीजों का इस्तेमाल करें, आवाज और सांस को रोकना, इन दो चीजों से एफर्ट लगाएंगे। सो वी विल डू समथिंग कॉल्ड एज देवपाना कुंभक। एक एग्जांपल बता रहा हूं, दिस इज नॉट अ थेरेपी, ये कोई थेरेपी नहीं है। थेरेपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट डू वी हैव टू डू फॉर थेरेपी? आपको डायग्नोस करना पड़ेगा। जब तक डायग्नोसिस नहीं करेंगे, डायग्नोसिस आपका नहीं करेंगे, थेरेपी नहीं कर सकते। तो जेनेरिक चीज बता रहा हूं, ऐसे ही जैसे बांट देते ना योगा में सबको, चलो ये भी कर लो वो भी, वैसे ही आपको बता रहा हूं, दिस इज नॉट अ थेरेपी। आपको केवल टेस्टर दे रहा हूं, बता रहा हूं कि देखिए आप किस तरीके से कर सकते। हाँ, एक तरीके से आप सांस रोकते हैं एक पैटर्न में, तो आपके लिवर पे असर आता है। दूसरे तरीके से रोकते हैं, जैसे 1:1:4:2 रेशियो में अगर आप रोकते हैं तो आपके लिवर पे असर आता है। 4:2:1:1 में रोकते हैं तो आपके किडनी पे असर आता है। तो आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूं मैं, केवल इट्स अ वेरी वेरी इलाबोरेट सब्जेक्ट टू बी डिस्कस इन दिस वेबिनार। तो एक एग्जांपल, देवपान कुंभक, जस्ट अ टेस्टर। तो कैसे करना है मैं आपको ये सिखा रहा हूं। ये वेबिनार आपको सिखाने के लिए नहीं है। अगर आप ये ठीक से नहीं समझ पाए तो आप दोबारा से वीडियो रिकॉर्डिंग देख के ये समझ सकते हैं। इन द क्लासेस वी हैव मल्टी टीयर सपोर्ट टू एंश्योर दैट पीपल आर डूइंग करेक्टली। और नुकसान आप नहीं कर सकते। आज तक अपनी सांस को रोक के कोई इंसान नहीं मरा दुनिया में, ठीक है ना? बाहर से रोकना पड़ता है, कोई चिपकाना पड़ता है, फांसी लेनी पड़ती है। अपनी सांस रोक के आज तक कोई नहीं रुका, मरा, आवाज चीख चिल्ला के आज तक कोई नहीं मरा दुनिया में। किसी को देख के, कुछ सुन के आज तक नहीं मरा कोई दुनिया में। तो ये नुकसान नहीं करेगा आपका, ये पहले निश्चिंत हो जाए। और आप कुंभक कर ही रहे हैं सुबह से लेके शाम तक,
अगर कोई कहता है ना आप कुंभक नहीं कर सकते, तो अब आपके पास चारा ही नहीं है, आप शरीर कैसे हिलाओगे? तो ऐसा नहीं है कि आप कुंभ सांस रोक के आपको ऐसा कुछ नुकसान करने के लिए या नुकसान करवाया जा रहा है, नहीं, ये नुकसान नहीं करता, मगर इसको अगर आप सही तरीके से करेंगे तो इसका रिजल्ट सही मिलता है। देवपान कुंभक, नाम क्या है? देवपान। गूगल में सर्च करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, बिकॉज दीज आर ऑल द कुंभक दैट वी आर कमिंग अप टू। हमने ये इन्वेंट किया है आज के लिए लोगों को हेल्प करने। इन्वेंशन तो गलत बात होती है, इंसान का अपना पक्षी है, इन्वेंट कौन करेगा? ये तो हमेशा से ही चालू है। कभी देखा इस किसी ने, उसको लोगों के इस्तेमाल के लिए बना दिया तो उसका नाम कह देते हैं। तो एक्चुअली इन्वेंट नहीं कहना चाहिए, बस मेथड कहना चाहिए। मेथड हमने बनाए हैं हेल्प करने के लिए लोगों को। तो देवपान कुंभक कैसे करेंगे? पहली बात, जब आपने भोजन किया अच्छे से तो एटलीस्ट वेट फॉर 3 आवर, 3 घंटे के लिए रुकें जरा, थोड़ा पेट हल्का हो ना, तब करते हैं कुंभक। whenever your stomach is a little empty then you do कुंभक। दूसरी बात, when we are creating a trigger inside, शरीर के अंदर एक ट्रिगर क्रिएट करना चाहिए, कर रहे हैं, for that you don't rest your body, अपने शरीर का टेक नहीं लगाएंगे, नो बैक रेस्ट नो साइड रेस्ट, क्योंकि ट्रिगर सही जगह पे जाना चाहिए। अगर रेस्ट लेंगे तो वहां इकट्ठा हो जाएगा। तो स्पाइन को फ्री छोड़ना है, कीप योर स्पाइन फ्री, ठीक है। नाउ यू कैन सिट एनीवेयर, आप बेड पे बैठ सकते हैं, सोफा पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, वेर एवर यू आर कंफर्टेबल, सिट एनीवेयर। व्हाट यू हैव टू डू, आई एम टेलिंग यू द मेथड। पहले मैं मेथड बता रहा हूं, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, आराम से सुनेंगे। सेकेंड स्टेप, वी विल डू इट टुगेदर, हम साथ में करेंगे, मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा और आप करेंगे। थर्ड स्टेप आप अपने आप करके देखेंगे, यू कैन डू ऑन योर ओन एंड सी दैट यू आर एबल टू डू, आप कर पा रहे, अदरवाइज वॉच द वीडियो अगेन, दोबारा से वीडियो देखिए। फर्स्ट द मेथड बता रहा हूं। सो व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना है आपको? मुंह से जैसे उबासी लेते हैं ना, द वे यू यॉन, उबासी लेते हैं ना, बड़ा लंबा खींचते हैं, तो ऐसा 3 बार खींचेंगे, जस्ट उबासी ले 3 बार कॉन्टिन्यूस, नो एक्सहेलेशन, सांस नहीं छोड़नी। खींचा, रोक लिया, फिर और खींचना है, रोक लिया और खींचना है, और फिर रोक लेना, होल्ड योर ब्रेथ। पहलवानी नहीं करना, जितना आराम से हो सके उतना ही करना, ठीक है ना। तो 3 टाइम्स इनहेलेशन फ्रॉम द माउथ, एंड व्हाट यू डू, यू क्लोज योर माउथ, मुंह बंद कर लें, बेंड योर हेड अ लिटिल डाउन, सिर को थोड़ा नीचे झुकाएं। अभी हवा तो पेट में भर लिया आपने, तो इसका क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुश इट डाउन, इसको नीचे की तरफ धकेलना है। कैसे धकेलना है? एग्जाम्पल क्या है? आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन तो हुआ होगा कभी ना कभी, तो फीकल मैटर को नीचे कैसे पुश करते हो, है ना, मल को नीचे कैसे पुश करते हैं, जोर लगाते हैं ना, ऐसा ही जोर लगाना है, मगर पहलवानी नहीं करना। वो जो हवा ले लिए ना, उसको नीचे की ओर पुश करना। आप हाथ मुट्ठी बांध लीजिए, पेट को टाइट कर लीजिए, पांव को टाइट कर लें नीचे पुश करने के, है ना, पुश करने के लिए आप टाइट करके थोड़ा नीचे की तरफ पुश करें, और 8 गिनती तक रुकेंगे। पुश किया, यू जस्ट मेक एन एफर्ट डाउनवर्ड, पुश किया नीचे और रुक गए, होल्ड, बिल्कुल स्टैचू हो जाओ 8 गिनती के लिए। उसके बाद आपको आवाज करते हुए एक्सेलेशन करना है, जितना स्लो हो सके उतना स्लो। कौन सी आवाज करनी है? वही वाली जो पुश करते टाइम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे करके आवाज करते हैं ना, तो आपको कैसे करना है? वैसे ही मुंह बंद करके, लेकिन क्लोजिंग योर माउथ, एक्सेल फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स, मेक अ साउंड, कंट्रोल द एक्सेलेशन। एक्सेलेशन कंट्रोल करने के लिए साउंड निकालें, 12 गिनती में एक्सेल करना, 8 गिनती के लिए होल्ड करना है, 12 गिनती में एक्सेल करना है, मेकिंग अ लिटिल साउंड, आवाज करते हुए 12 गिनती में एक्सेल करना। लेट्स डू इट टुगेदर, साथ में करते हैं। मुट्ठी बांध लीजिए, कीप इट ऑन योर नीज, घुटनों पर रखें, ओपन योर माउथ, मुंह खोलें, हवा खींचे, पूरा खींचे, होल्ड, रोक लें, सेकेंड टाइम खींचें, दोबारा खींचें, होल्ड, थर्ड टाइम खींचें, थर्ड टाइम, पुल इट मोर, क्लोज योर, मुंह बंद करें, सिर को नीचे करें, एंड पुश इट डाउन। वो हवा जो ले ली ना आपने, उसको नीचे धकेलें,
पुश इट डाउन, होल्ड, रुक जाएं, 8 7 6 5 4 3 2 1। अब धीरे धीरे एक्सेल करेंगे, धीरे धीरे एक्सेल करेंगे, मेकिंग अ साउंड। 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। जिनके भी सिर में दर्द होता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ब्लड प्रेशर क्यों हाई होता है? क्योंकि आपके बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा ठीक से, तो बॉडी ब्लड प्रेशर बढ़ा के ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। हार्ट में ब्लॉकेजेस क्यों होते हैं? अगर टीनेज में, इफ द हार्ट डजंट गेट्स ब्लॉक्ड इन टीनेज, द पर्सन विल नॉट सर्वाइव मोर देन 30 years। हार्ट ब्लॉकेज आपके अंदर प्रेशर बढ़ाने के लिए होता है। इफ यू वाटर प्लांट ना, पाइप से अगर आप पानी दे रहे हैं पेड़ पौधों को और दूर पानी फेंकना, तो क्या करना पड़ता है? उस पाइप के छिद्र को कम करना पड़ता है, ल्यूमेन को दबाना पड़ता है। तो वही तो आपका हार्ट कर रहा है, डिपॉजिट करके प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि ठीक से फ्लो हो पाए। ठीक है, ये तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है आपके बॉडी का। आपके बॉडी में ही हार्ट में कोलेट्रल्स होते हैं। अगर ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा, अगर आप 1 महीने 2 महीने तक अपने दर्द को सह लेंगे, तो कोलेट्रल्स क्रिएट कर देगा बॉडी। सो ये समझिए कि जिनको भी ये प्रॉब्लम है, जैसे ये देवपाना है, ये रिलैक्स करता है। लोअर बैक पेन है किसी को, पांव में दर्द रहता है, थकावट रहती है, थके थके पांव रहते हैं, नी पेन, एनी काइंड ऑफ अ नर्वस इश्यू इन द बॉडी, ये देवपाना कुंभक उसको एड्रेस करता है। इट ऑल्सो स्ट्रेंथन समथिंग कॉल्ड एज योर पृथ्वी तत्व, आपके पृथ्वी तत्व को मजबूत करेगा, यानी कि बॉडी का ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो देवपाना कुंभक मेंटल टेंशन जिनको रहता है, ओवर एक्टिविटी इन द माइंड, रेसी थॉट्स, दिमाग चलता रहता है, वो कम करेगा, कॉन्फिडेंस बनाता है। आपको मालूम है, ब्लड प्रेशर से जो भी सफर कर रहे हैं, उनके अंदर ना एक्चुअल में कमजोरी होती, इसीलिए गुस्सा जल्दी आता। कमजोर लोगों को गुस्सा जल्दी आता, एनर्जी लेवल कम होता, कमजोर लोगों को ना गुस्सा जल्दी आता। तो कमजोरी के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नहीं तो आप प्रेशर खुद नहीं बढ़ा पा रहे, तो शरीर बढ़ा रहा है उसको, नहीं तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? तो आप देखेंगे, यू विल गेट लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लग जाएगा। तो देवपाना कुंभक बहुत तरीके से फायदा कर सकता है, आराम से कीजिए। ऑलवेज गिव अ लिटिल गैप बिटवीन 2 राउंड्स, 2 राउंड के बीच में आराम से गेट योर ब्रेथ टू नॉर्मल, सांसों को सामान्य करें, तब अगला राउंड करें। मिनिमम 8 राउंड्स, मैक्सिमम 16 राउंड, उससे ज्यादा नहीं करना। कम से कम 8 राउंड करेंगे, तब आपको एकदम से दिखेगा फायदा। मैक्सिमम कितना करेंगे? लालच नहीं करना ज्यादा, लालच से सब बर्बाद कर रहे हैं हम अपने आप को। 16 राउंड्स मैक्सिमम, उससे ज्यादा ना करें, बिकॉज योर बॉडी विल गो थ्रू सडन चेंज विच यू विल नॉट फील गुड अबाउट, है ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो नॉट मोर देन 16 राउंड्स, डू इट जेंटली, आराम से करेंगे। सो आई विल स्टॉप हियर, यहां पे मैं रुकूंगा। द टीम विल टेक यू फॉरवर्ड, टीम आपको आगे ले जाएंगे। थैंक यू सर। थोड़ा सा मैं आप लोगों को प्रोग्राम के बारे में जानकारी दे देता हूँ। बाकी बाय द वे, जिन लोगों को इसमें रुझान आया और रुचि आई हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा हम लोगों ने पोल शुरू करने वाले हैं, तो उस पोल पे जरूर रिस्पॉन्ड करिएगा। जिनके मन में कोई सवाल हो या इंटरेस्ट हो इस कुंभक थेरेपी के बारे में जानना, और आप कैसे अपनी मदद कर सकते हैं उसके बारे में जानना, तो अपना फोन नंबर जरूर शेयर करिएगा चैट के अंदर। सभी लोगों के हम सवाल लेने वाले हैं, तो प्लीज अपने सवाल मेंशन करिएगा, और जिन जिन को सवाल है वो अपना हैंड रेज करते जाएं, ताकि हम सिलसिलेवार एक एक करके सारे सवालों को लें। शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा सा ऑनलाइन प्रोग्राम के बारे में बता देना चाहता हूँ। ओके, तो ये पूरी तरीके से ऑनलाइन प्रोग्राम है। वी आर टॉकिंग अबाउट, कहीं पे किसी को जाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो सेंटर you have to go to, nothing is there. We are talking about a holistic program which treats all your conditions completely. Now when we are saying reversal, what do we mean? All your medicines should be completely gone,
all your symptoms should be completely gone, and there should not be any prolonged dependency on Kumbhak therapy practices. तभी एक तरीके से रिवर्सल कंप्लीट होगा. It does not involve any exercise, no diet plan, no medicine, not even Ayurveda. We do give you a lot of education about how to support your lifestyle, your detox processes, and many other things to support your recovery and help it become much faster. वो सब हम बताते हैं. Essentially, we are talking about a 3-month long structured way of teaching you Kumbhak practices, which is based on Prana Shakti diagnosis. 3 learning classes में ज़्यादा important होती हैं, but there are bunch of other sessions, practice sessions and so on. उसको अभी थोड़ा मैं describe कर देता हूँ. तो आपकी screen के सामने पहला महीना है, किस तरीके से दिखता है. Week 1 is the first learning session, which is the basic Kumbhak module. इसी दौरान आपकी form filling होती है for Prana Shakti diagnosis and so on. Practice sessions होते हैं आपके along with this learning session. Learning session is for 1.5 hours. तो 6:30 से 8:30 की बजाय 7 से 8:30 के बीच में है सुबह के समय में. दूसरे वीक, second week would be advanced Kumbhak module to help you get acclimatized towards your personal or personalized practices. तीसरे वीक में आपकी personalized practices बताई जाएंगी. आपके सेशंस होंगे प्रैक्टिस के क्लैरिफिकेशन के लिए अलग से, और इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेशंस होते ही हैं. सो दीज ऑल सेशंस आर डेज. प्रैक्टिस सेशन जो आप देख रहे हैं उसमें सुबह अलग है, शाम अलग है. तो बेसिकली दैट इज हाउ इट इज. सेकेंड मंथ में प्रैक्टिसिंग के लिए आपका सेकेंड फेज शुरू होता है. पहला फेज लर्निंग का, दूसरा फेज आपका प्रैक्टिस का, इम्प्लीमेंटेशन का. तो उसमें सुबह शाम आपके सेशंस होते हैं, तीनों वीक में सेशंस होते हैं एटसेट्रा. और फाइनली towards the end of this particular phase, towards the end of 8th week, आपको स्वामी जी के साथ में एक सेशन होता है जिसमें वो क्लैरिफिकेशंस करते हैं प्रैक्टिसेस वगैरह के ऊपर, और काफी चीजें और भी बताते हैं. Then the third month is basically about level tracking, your symptom tracking, helping you understand how you understand your body a little better, कैसे symptoms को समझे, अपनी body को बेहतर समझे, और उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप मेडिसिन कैसे कम करें. तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन सेशंस, एजुकेशनल सेशन, प्रैक्टिस सेशंस होते रहते हैं. और 13वें वीक के बाद में, दीज आर द फर्स्ट 12 वीक्स, 13वें वीक के बाद में लगातार आपका सपोर्ट चलता रहता है जब तक के प्रोग्राम की प्रॉमिस मीट नहीं होती है विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट. तो तब तक सपोर्ट देता है आपको प्रोग्राम जब तक कि आपके सिम्टम्स, कुंभक थेरेपी पे डिपेंडेंस और सारी मेडिसिन खत्म नहीं हो जाती. ये बेसिकली यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था. ये आपके सेशंस चलेंगे और 4 टीयर का सपोर्ट मैकेनिज्म है. देयर इज अ वेरी एलेबोरेट सपोर्ट मैकेनिज्म टू एंश्योर कि आप ठीक तरह से समझें और ठीक तरह से प्रैक्टिसेस कर पाए. क्या है वो सपोर्ट मैकेनिज्म? प्रोग्राम में कई मेंटर्स होते हैं, 8-10 मेंटर्स होते हैं जो आपको लगातार आपके सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद रहते हैं. वी डू मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप. सारे पार्टिसिपेंट्स, प्रोग्राम मेंटर्स उस व्हाट्सएप ग्रुप में रहते हैं तुरंत जवाब देने के लिए. यू कैन मेक अ फोन कॉल, यू कैन इवन गेट इनटू अ इंडिविजुअल वीडियो डिस्कशन विद योर प्रोग्राम मेंटर्स. वो आप म्यूचुअल कन्वीनियंस के हिसाब से फिक्स करके यू कैन गेट इनटू दैट. वो सारी चीजें कर सकते हैं. और ये सारी चीजें वर्किंग आवर्स में अवेलेबल है, मॉर्निंग से लेके शाम को 7 बजे तक. इसके अलावा सेशन की आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, बाकायदा एक स्पेशल लॉगिन बनाया जाता है. यू कीप दैट रिकॉर्डिंग फॉर योर एंटायर लाइफ टाइम. You do get instruction set in both Hindi and English for you to refer to. और follow up sessions होते ही रहते हैं जैसे मैंने आपको बताया. आपको करना क्या है, 30 मिनट के मॉड्यूल्स हैं, 20 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम, बस इतना ही करना है. So I would like to stop here for a bit. हाँ, ये भी मैं बता दूं आपको. तो इसकी प्रोग्राम की एफिकेसी तकरीबन लगभग 80% है. 25% दिस इज within a 2.5 month period. During the program 25% लोगों की मेडिसिन कंप्लीटली खत्म, एडिशनल 29% की मेडिसिन आधे से कम, और एडिशनल 24% के सिम्टम्स बहुत हद तक इम्प्रूव हुए हैं. डॉक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं उनके मेडिकेशन, इसलिए वो कम नहीं कर पा रहे हैं. तो 78%, लगभग 80% ने इसमें रिकवरी पाई. सो इन शॉर्ट, आप अगर डिसिप्लिन से प्रैक्टिसेस करेंगे तो आपको 100% रिकवरी मिलेगी. सब लोग कर नहीं पाते हैं तो वो लोग रह जाते हैं इसमें. So that's how it is. सभी तरह के लोगों ने, बीपी हार्ट की सिचुएशन में तमाम लोगों ने रिकवरी पाई है. कुछ लोगों ने, जैसे नितेश जी ने बहुत छोटे समय में बीपी भी और डायबिटीज की भी मेडिसिन बहुत कम समय में कम करी थी.
So these kind of examples are there. More than 2,500 people have participated in Kumbhak therapy program. तो हर तरह के examples है, हर तरह के testimonials और ये वो सभी कुछ है, उसकी चिंता ना कर. थायराइड का इशू, डायबिटीज का इशू, हाइपरटेंशन का इशू, वो सारे इश्यूज हैं. विल कम टू द प्रोग्राम कॉस्ट लेटर, बट सबसे पहले आपके क्वेश्चंस लेना चाहेंगे हम. तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं. बाय द वे, पोल्स के ऊपर रिस्पॉन्ड जरूर करिएगा ताकि हम आपको इंडिविजुअली आप तक पहुंच के आपको गाइड कर सकें. आप अपने आप को अनम्यूट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं या आप अपने सवाल लिख सकते हैं. उनमें से कुछ कुछ लेना शुरू करेंगे. हेलो जी, आदेश जी बोलें. हाँ सर, गुड इवनिंग. मुझे एक्चुअली डायबिटीज डायग्नोज हुआ है बिफोर 2.5 years. तो उसके लिए मैं अभी रेगुलरली कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, मतलब चूंकि अभी छोटा सा समय है, 2-2.5 साल हुए हैं. तो लेकिन मेरा जो हेल्थ है वो मुझे लग रहा है कि मैं अपना वेट लॉस कर रहा हूँ, ठीक है. और मतलब अभी कुछ ज़्यादा सिम्टम्स मुझे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा, बट मुझे क्या करना चाहिए ताकि फ्यूचर में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो पाए मुझे. तो आप डायबिटीज, आपको ब्लड प्रेशर है क्या? नहीं सर, ब्लड प्रेशर नहीं है. 2-2.5 साल पहले मुझे डायबिटीज हुआ है और शायद ये फैमिली हिस्ट्री है. मेरे फादर को डायबिटीज थी, ठीक है, और वो एक्सपायर हो गए 2018 में ड्यू टू सडन हार्ट अटैक. उसके बाद में मुझे डायबिटीज हो गया है. मुझे शायद टेंशन की वजह से फादर अचानक चले गए, इसकी वजह से. तो मतलब ये सिचुएशन है. रेगुलर मैं मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ. मुझे कभी कभार लगता है अगर कुछ हाँ, दिक्कत है तो मैं मेडिसिन लेता हूँ. रेगुलर मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ. तो आप डायबिटीज का प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए. हमारा डायबिटीज का प्रोग्राम होता है, आप वो ज्वाइन कर. आप सर अपना फोन नंबर नीचे लिख दीजिए और आगे डायबिटीज लिख दीजिए, तो हमारे काउंसलर आपको गाइड कर देंगे. अच्छा ठीक है. मेरी एज जो है ना अभी 35 ईयर्स की है सर. हाँ, और मैं नंबर और अपना नाम भेज देता हूँ सर उसमें. अभी तो बहुत यंग है, अभी दवाई नहीं खाना, अभी तो बहुत लाइफ पड़ी है, अच्छे जी से जी जीना है. तो उसके लिए काम जी कीजिए और हेल्दी हो जाइए वापस से. जी जी. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. आप लोगों में से जिन जिन के सवाल हो प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिए, और जिनका इंटरेस्ट हो प्रोग्राम में पोल पे भी रिस्पॉन्ड करें और अपना फोन नंबर भी शेयर कर दें प्लीज. छाया देवी जी, लोकनाथ, मिस रीता, you can ask your question please. Hello, Rita ji. Hello, Yeah, go good ahead. evening. Actually, I want to ask about the time as I'm working. So it will be difficult for me to attend 8 o'clock like that in the morning. It's 7 in the morning, ma'am. Yeah, whatever 7 because I'm teaching. So normally schools are around 7:30 I leave. So we have sessions both in the morning and in the evening. You do get session recordings, and you do have individual mentor support in case you have queries. You can reach out to them on phone calls, through WhatsApp, yeah, even individually over a video discussion. So all of that is there. So you mean to say I have to attend the recorded program? No, that's your choice. I'm saying you have all these support mechanisms. You do have an आप individually भी किसी mentor के साथ में video session में भी जा सकती हैं, is what I have told you. I've told you it is your choice. You do have sessions, you do have session recordings, you do have PDF instruction sets, you do have sessions on multiple days. Many of them are going to be weekends also. You do have sessions both in the morning and also in the evening. You do have program mentor support with whom you can get into a mutually convenient video slot and discuss your issues or your teachings or learning. जो सवाल हो आपके पास, all of that. So it is. Thank you. See, once a week, if somebody is concerned about his or her health, once a week अगर आपको कोई अटेंड करना हो तो वो भी फर्स्ट 3 weeks में जो है आप लर्निंग सेशंस में आते हैं once a week.
in the morning. So you see that if it is important, you can adjust also. Otherwise, there are other things also available. You share your number, आपसे अलग बात करके ना आपको और डिटेल में समझा दें. Okay, thank you. Somebody is asking, does time affect practicing Kumbhak therapy? If yes, how? If no, how? Time affects everything, isn't it? You sleep during the night, you wake up during the morning. Time affects everything. It affects your metabolism, it affects your organ functioning. If it affects everything, time affects everything. But Kumbhak is your mechanism. You can do it anytime. It is not something coming from nature. Nature has its own system of regulating forces, but this is something that you are doing on your own. So you can do. The only requirement, that is why we said, is a little light stomach condition, so that you do it properly. Whenever you are in a little light stomach condition, you work most efficiently. And because we will be creating a trigger inside, if you have something inside, certain triggers can actually make you feel pukish. इसीलिए आपको बताया. But yes, time affects everything. But Kumbhak is your mechanism. Right. Others who have any queries, Bharat Shah ji, Loknath, Mr. Loknath, Ms. Shaya Devi. Loknath Maningde, sir, good evening to all of you. Good Good evening. evening. सर आप जो बताएंगे कुंभक किया, जिसका हार्ट प्रॉब्लम है, बीपी है, वो कर सकता है क्या? ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा? हाँ, नहीं तो आप तो कर ही रहे हैं ना. अगर आप लेट ज्वाइन किया तो आप वापस से वेबिनार में देखिए, हमने बताया हुआ है कि आप तो कुंभक कर रहे हैं, तब तो कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा. और कुंभक करके थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो बेटर हो जाएंगे. बीपी है, मगर मेडिसिन नहीं खाते हैं हम. हाँ, तो बीपी मेडिसिन 120. आगे आगे चल के मेडिसिन नहीं खाना है, ये कैसे इंश्योर करेंगे? हार्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? तो ये जो कुंभक है, ये हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है. कुंभक करके सांस रोक के देखिए, आप मरेंगे नहीं, बेहोश जरूर हो जाएंगे. फिर आपको कोई नहीं मरा आज तक सांस रोक के. आप एक एग्जांपल बता दीजिए पूरी हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में बता दीजिए एक इंसान जो सांस रोक के मर गया. ऐसा नहीं होता. वो शरीर आपको बेहोश कर देगा. शरीर कभी भी नुकसान नहीं करता. ये आपके शरीर का ही मैकेनिज्म है. कैसे करना ये हम आपको बताएंगे. इसीलिए ये एक गाइडेड प्रोग्राम है कि कैसे करना है, वो हम आपको बताएंगे. बोथ इवनिंग मॉर्निंग जॉइन कर सकते हैं ना? नहीं, जो लर्निंग क्लासेस है, प्रैक्टिस आपको जो करना है ना, वो सुबह और शाम करना है. 20 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को. जो प्रैक्टिस सिखा देंगे एक बार, तो उसके बाद आपको सुबह और शाम ये थोड़ा करना पड़ेगा. जो मेन 3 लर्निंग क्लासेस हैं वो सुबह 7 बजे हैं. वो फिक्स समय पे होती हैं. मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता देता हूँ प्रोग्राम की कॉस्ट और समय वगैरह एटसेट्रा. तो प्रोग्राम की जो कॉस्ट है, दैट इज 8,000 रुपीज. बेसिकली इट्स अ लाइफ टाइम मेंबरशिप. वो एक बार ही पे करना है फॉर लाइफ टाइम. सो इट्स नॉट दैट 3 महीने के बाद कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं है. टिल द पॉइंट योर कंडीशन इज गॉन, you don't have to pay any time ever extra. So this is for eliminating all your concerns. सब तरह से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड सो ऑन, जीपे, फोन पे, पेटीएम एंड सो ऑन. 18 सितंबर सैटरडे सुबह 7 बजे का क्लास है. सो रीता मैम, योर कंसर्न अबाउट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड सो ऑन, तो आप चूंकि टीचर हैं, आई थिंक सैटरडेज probably would be an off for you. So the 3 No, not at all. Only Sunday. Okay, fair enough. So we have other, as I mentioned, that we have these recordings, and we have we'll come back to you and we'll discuss in person with you. So we'll explain to you in detail. But the classes are going to happen on a Saturday at 7 a.m. in the morning. Okay, thank you. Right. So this is how the website would be, and you can subscribe from the website. आपको एक छोटा सा कूपन कोड डालना होगा. कूपन कोड आपको दिया जाएगा इन द मैसेजेस एंड ग्रुप्स एंड एवरीवेयर. सो हार्ट 25 इफ यू पुट इट, तो वो उस तरह से, या कुंभक अर्ली, केएमबी अर्ली, केएमबी एच अर्ली, तो यू कैन अवेल दैट डिस्काउंट. सो दैट्स हाउ इट इज. बाकी या दैट्स अबाउट इट. बाकी बैक टू योर क्वेश्चंस. सो आई थिंक
I'm taking medicine for BP. How to reduce the dose? Chaya Devi. Yeah, hello. Yeah, good evening, sir. Yes, ma'am. Go ahead. I am from Nepal. Go ahead. Mhm. So actually, I am taking blood pressure medicine now from since 2010 years. Yeah. Mhm. OD. Yeah. Amload. My weight is gaining 80 kg. So how can I reduce my medicine? Uh-huh. Can you help me? Yes, sir. So I'll just give you a generic answer so that everybody can benefit. If you are taking medicine, if you are taking medicine of any kind, so Yes. medicine always is an intervention in the process of the body. So if there is an organ weak inside you and you are taking medicine for controlling whatever the numbers you want to control, what happens? That organ is weakening other organs or impacting other organs also. You're not doing anything to strengthen that organ or to reduce the impact of that organ on other organs. So if you keep taking medicine and control your sugar levels, what happens over a period of time? Your organ strength becomes weaker and weaker. So you will get into organ damage. There is no question about it. Medicine creates organ damage, and there is something called as ADR, adverse drug reaction. Go on the Google and search for these two terms, ADR and NNT, number needed for treatment. Then you will find out how the medicine impacts you in longer term. Now, nothing can stop you from further deterioration unless and until you strengthen the weak factors inside you. So if you want to come out of medicine, you will have to strengthen the organs inside and the functioning inside. And that is what we are teaching in the class. How to strengthen your heart, how to strengthen your liver, how to strengthen whatever has become the function which has become weak inside you. This is what we teach in the class. Once you start doing those practices, you'll see the first thing that everybody will experience is symptoms are gone. Your weight will come down. It will become normalized. Your weight will come down. There are hundreds of now cases where people have lost weight in a very, very most appropriate manner. If you lose weight without addressing the risk that your body has got into, that weight reduction will itself weaken your organ. So Kumbhak is something which will strengthen your organ. You'll lose weight, and you'll see you also protect yourself from further deterioration of the whole system. Okay, thank you. So how can we join the class? You please share your phone number in the group chat. So yes. So we'll basically reach you over WhatsApp and so on, and we'll give you details, and we'll be sharing payment details in the group chat also, and also in the WhatsApp groups. Okay, thank you. Right, ma'am. Thank you. Okay, so I think there are a lot of guests from Nepal. So people who have any queries, please raise your hand or ask your question directly. Bharat Shah ji, do you have any query? आपको कोई सवाल है भरत जी? दुर्गा खड़का जी, आप सवाल पूछ सकते हैं. मिस्टर दुर्गा, if you are there, please ask your question. Okay, sir, thank you. Go ahead. For me, it's the morning session is very difficult to attend because I am a lecturer and I have to go to class early in the morning. How can I solve the problem? Share your number, and people will get in touch with you, and we'll guide you, sir. So there is that's why we have practice sessions and recordings, and there is all kinds of support that you need. Sorry. So please do share your phone numbers. We'll reach out to you individually and we'll guide you, sir. There is no problem. Sir, I have said my number on chat box. Yes, I can see that. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Right.
Then Mr. Bharat Shah and others, if you have any queries, please unmute yourself, ask your question. आप अपने आप को unmute करके सवाल पूछ सकते हैं, please. जिन लोगों ने पोल पे रिस्पॉन्ड नहीं किया है, प्लीज मेक श्योर कि आप पोल पे जरूर रिस्पॉन्ड करें. एक पोल ऑन है, उस पोल पे जरूर रिस्पॉन्ड करें. काफी लोगों ने नहीं किया है अभी, और काफी लोगों का कहना है कि उनके मन में अभी भी सवाल हैं जो उन्होंने पोल में मेंशन किया है. Hello. Yeah. Yes, Greta. How are you? Yeah, I'm good. Yes. I've done this diabetes course. Yeah, but ma'am, we have reached out to you so many times. So many people have benefited since we spoke the last time, and you are still not joined. Oh, The only thing that is changing is the program fees, which keeps on increasing. Greta acha. ma'am has joined. Oh, she has joined. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm Yes. so sorry. I'm so sorry. Yeah, so I want to know I have done this diabetes program of yours, Kumbhak. How was your And experience, ma'am? my experience was good. So what happened? Suddenly my sugar was going very low and I was feeling very uneasy. When I checked my sugar, it was low. So I on my own have stopped the tablet in the morning. So only 1/2 tablet. I was taking one tablet in the morning and half in the night. So the morning one I stopped because I was feeling very low and I just couldn't, I couldn't get up. I can't do anything. So then I thought my sugar must be low. So I started checking. It was very low, to 74, 63, like that. So then I stopped that tablet and I'm okay now. But I don't know whether to completely stop it. This is one thing. And second thing, that now if I want to join, I put a stent for my heart and pressure I have. So to join this program, I still have to, my payment will be the same for like other people, 8,000. Yes, ma'am. We'll reach out to you individually for this. Just, Okay. just if you don't mind, if you can mention your number again in the group chat, we won't miss out. Put my number. Hello. Okay. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Right. So for those who might have been skeptical, a little bit of a testimonial of sorts. But Kumbhak is known to people. Then why for just again telling you take 8,000 rupees? Kumbhak is known to people. Yes, Kumbhak pranayam is known to the people. Baba Ramdev every day show how to practice it and all that. Then why you take 8,000 rupees for that? नहीं, if you want to practice that, please go there. वहाँ पे आप practice. हमने तो रोका नहीं आपको practice करने के लिए. This is a specialized program. Baba Ramdev is not teaching Kumbhak as such, not Kumbhak therapy. He is teaching. He teaches Kumbhak also. Not as such. He also teaches Kumbhak along with pranayam. He might be teaching Kumbhak, but we are teaching Kumbhak therapy. It's a different kind of a Kumbhak, and it involves diagnosis also. We can't teach it like in public the way he's teaching. We can't do that because it is customized only to a person. And there is an infrastructure needed for that, and there is a guided thing also into it. So just तो बाबा रामदेव फ्री में योगा सिखाते हैं, पर वो तो उनका पूरा there are people who are putting money into it. We don't have those kind of people who are putting money behind us. So we to make it self-sustained kind of and reach out to more and more people. We have made this we are not talking about Kumbhak pranayam. Honestly, Kumbhak pranayam is for, I mean, any kind of a pranayam or yogic practice is for salvation or mukti. And this is exactly the opposite. This is to heal you. This is to revive you, not to, आपको विलीन करने के लिए नहीं है, the Almighty or whatever. There are लाखों कुंभक होते हैं. वो कुछ कुंभक सिखा रहे होंगे, वो योगा के लिए या प्राणायाम सिखा रहे, जो भी सिखा रहे. कुंभक तो बहुत तरीके के होते हैं. Yes, yes. 12.5 lakh kumbhak. Kumbhak that you usually teach, he also teaches. Well, it's all right. It's all right. Okay, thank you. Thank you, sir. Total for everyone's benefit,
टोटल 12.5 लाख कुंभक प्रैक्टिसेस हैं। प्राणायाम उनमें से कुछ एक प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, बट द पर्पस इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। Here the purpose is health, not spiritual. This is the aim of Kumbhak Pranayam. Why is it named Kumbhak? Why it's named Kumbhak? Okay, so if I start exploring Kumbhak, it will take a lot of time. But the word Kumbhak means hold. The word Kumbhak means hold, and from that hold, there is something called as Kumbha, which has popped out. So whenever life is held in a particular place or energy is held in a particular place, there is a possibility of life there. So it always gets held in a form also, which is a Kumbha form or a Linga form. We also call it a Linga form. So when creation happened, there has to be a space which needs to hold energy for everything else to be formed there. So Kumbhak is the fundamental to life. Without Kumbha, without Kumbhak, without hold, life cannot happen. So Sanskrit name for hold is Kumbha. That is why Kumbhak name has been given. Great. Mr. Ram Nivas जी, आपका कोई सवाल है? Sir, I am suffering from heart blockage. जी। हार्ट ब्लॉकेजेस, ये उसी के लिए प्रोग्राम है कि हार्ट ब्लॉकेजेस आपका जो हार्ट कर रहा है ना, आप एक हटा देंगे वो दूसरा आ जाएगा। अच्छा आप जी। एक हटा देंगे वो दूसरा आ जाएगा, है ना। एक में एंजियोप्लास्टी आप करवा लो और जी। या तो वहीं पे जाम दोबारा से हो जाएगा या तो फिर कहीं और जाम हो जाएगा। तो जो जाम हो, हाँ, मैं वही आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। जाम होने की प्रवृत्ति को आपको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। वो जो टेंडेंसी है ना कि जाम करके ही आपका हार्ट एफर्ट क्रिएट कर पा रहा है, ये शक्ति क्रिएट कर पा रहा है, उसकी टेंडेंसी को कम करना पड़ेगा। यानी कि हार्ट को थोड़ा स्ट्रेंथ देना पड़ेगा, तब जाके आप देखेंगे कि आगे जाके ब्लॉकेजेस आपके रुक जाएंगे, है ना। तो इस पे काम करना पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं, इस पे काम करना पड़ेगा। राइट सर। तो वही हमारा प्रोग्राम और इसी चीज के लिए है कि आपका डायग्नोसिस करेंगे कि क्यों जाम हो रहा है, क्यों ब्लॉक हो रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद एक कस्टमाइजेशन करेंगे, आपके हिसाब से चीजों को डिजाइन करके आपको सिखाएंगे। राइट सर। ओके, ऑलराइट, कल मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। जी सर, हमारा ज्वाइन करने के लिए, एनरोलमेंट के लिए लिंक दिया हुआ है ग्रुप चैट में। ओके, राइट, आई नो, ठीक है। How many types of Kumbhak I teach? I teach every kind of Kumbhak. You can't even count. आप काउंट नहीं कर पाएंगे, but it is always customized according to the person. राइट सर। हमेशा कस्टमाइज के हिसाब से कस्टमाइज होता है। उमा जी हमारे साथ में हैं, जिन्होंने हार्ट और बीपी का प्रोग्राम किया हुआ है। उमा मैम, आपको क्या था? If you're there, if you can share your experience. हेलो। यस मैम। नमस्ते उमा मैम, कैसे हो आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। मैंने जो प्रोग्राम शुरू किया, मुझे बीपी में तो बहुत फायदा है और मैं एक दवा खाती हूँ, वो दवा मैं अभी भी खा रही हूँ, पर मेरी रेस्टलेसनेस कम हो गई है, मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया है। आपकी आवाज बंद हो गई है मैम, म्यूट पे चले गए आप। मेरी डाइट बहुत अच्छी हो गई है एंड आई एम फीलिंग मोर एनर्जेटिक। आप लोगों को दिख रहा होगा, आई एम 70 years old एंड आप तो यंग दिख रही हैं पहले से। कुंभ में गए थे तब से तो यंग हो गई आप। कुंभ तो फिर तो मुझे लगता है कि आपको लग रहा होगा, मुझे तो नहीं समझ में आता। नहीं, मुझे लग रहा है क्योंकि मैं तो आपसे उसी समय मिला था और उस समय से अभी तक तो आप यंग लग रही हैं। थैंक यू। क्योंकि मेरी डाइट बहुत अच्छी हो गई है, मेरा कुंभक बहुत अच्छे से हो रहा है और ब्लड प्रेशर की मेरी दवा भी नहीं बंद हुई, पर मुझे बहुत
एनर्जेटिक फील होता आपको तो मैंने बोला ही था कि आप दवाई छोड़ो, वो तो है ही नहीं दवाई वो, लेकिन आपके थोड़ा दवा आदत में आ गई है दवाई। है। हाँ, क्योंकि आई हैव बीन ब्लड प्रेशर पेशेंट फॉर लास्ट 25 years, तो दवा छोड़ते छोड़ते छूटेगी ना। पर आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्टिक कि कुंभक से मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं, आप ठीक हो, देखो इतने यंग ऐसे कुंभक ने कर दिया आपको, अभी आप और यंग होते जाओगे, चिंता नहीं करना। बहुत बढ़िया। और मैं जितने लोग यहाँ पे हैं, मैं उनको एक बात और कहना चाहूंगी कि कोशिश ये करिए, जो ये बार बार बताते हैं कि आप सीधे बैठिए। आप जितना अपनी स्पाइन को सीधा इरेक्शन में रखेंगे, उतना ही ज्यादा आप बेटर फील करेंगे। और ये कुंभक से ही होता है। जब आप कुंभक करने लगोगे तो धीरे धीरे आप खुद ही सीधे बैठना सीख जाओगे। कुंभक और कुंभक थेरेपी जो बाबा रामदेव करवाते हैं, उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है, ये मैंने देखा। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक साइंटिस्ट रही हैं। मैं साइंटिस्ट अभी भी हूँ, रही नहीं हूँ, मैं अभी भी हूँ साइंटिस्ट। हाँ, साइंटिस्ट तो खैर क्वालिटी तो कहीं नहीं जाती वो, मगर ये और मैं साइंटिस्ट जितनी बार, जब भी आपका ये प्रोग्राम होता है, मैं इसको अटेंड करती हूँ और हर बार मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है, और मैं जरूर अटेंड करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू। एक सवाल है सर, क्या कुंभक से वेगस नर्व को सही और मजबूत किया जा सकता है? आप ये कितने भी कॉन्सेप्ट लेके आ जाओ, अभी वेगस नर्व के बारे में बात कर रहे हैं, कल को और किसी चीज के बारे में भी बात करेंगे। कल को आपकी एंजियोप्लास्टी बैन हो जाएगी, मालूम है आपको? आपको जो डायूरेटिक देते हैं, हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड, लोसार्टन पोटेशियम, टेलमिसार्टन पोटेशियम, ये जितनी चीजें देते हैं ना, ये आपके हार्ट को और कमजोर कर देती है, आपके शरीर से पानी निकाल देती है, और ब्लड प्रेशर तो कम दिखता है मगर आपका हार्ट और कमजोर हो जाता है। ये स्टडीज जैसे जैसे आते रहेंगे, आपको बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेगा। और शायद कभी आपको ये भी लगे कि मैंने इतने साल मेडिसिन खाया क्यों, अगर आज ये मेडिसिन बैन हो गया। रेमडेसिविर खिला खिला के फिर बैन कर दिया। जो लोग उनके नुकसान से गुजरे, उनकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कोई भी नहीं लेता। आइवरमेक्टिन एक अच्छी सी दवाई थी, लेकिन किसी को फायदा नहीं होता तो उसको पीछे कर दिया, उसको बनाया ही नहीं। अमेरिका में ये सब चीजें आप पढ़िए। तो वेगस नर्व के बारे में बात करेंगे, नए और नर्व्स के बारे में और बता देता हूं मैं, हाँ, मगर उससे होने वाला कुछ भी नहीं है। इफ यू वर्क टुवर्ड इन द इंटीरियोरिटी ऑफ द बॉडी, अगर आप अपने शरीर के अंदर की तरफ में काम करेंगे ना, एक चीज तो पक्का कर लीजिए कि आपको फायदा होना ही है। देयर इज नो अदर वे। वेगस नर्व इज ऑल्सो इनसाइड योर बॉडी, एंड कुंभक को हम डिजाइन करते हैं आपके शरीर के अंदर काम करने के। तो आपके वेगस नर्व पे कुंभक से ही काम हो सकता है। कोई और तरीका बता दें नर्व पे काम करने का? नर्वस सिस्टम की तो इलाज ही नहीं है कोई। तो ये कुंभक से ही काम होता है। रवीना जी थोड़ी इंक्विजिटिव हैं आपके बारे में। आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई और क्यों? अरे ये फेरी टेल वाली कहानी यहाँ सुनाने के लिए नहीं है। कुंभक की शुरुआत हुई, ये तो कहते हैं ना, आसमान फटा और मेरे ऊपर गिर गई ये चीज, तो अब मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मुझे चुन लिया गया ये आपको बताने के लिए, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। मगर यही है मेरी जर्नी। अश्विनी जी और बिपिन नंदा जी के कुछ सवाल हैं शायद अपनी कंडीशन को लेके। आप प्लीज अनम्यूट करें। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ मिस्टर अश्विनी एंड मिस्टर बिपिन नंदा एंड आस्क योर क्वेश्चन। मिस्टर अश्विनी जी अनम्यूट करके सवाल पूछें। सर आवाज बड़ी धीमी आ रही है आपकी। सुन पा रहे हैं अभी? हाँ अभी। हाँ बोलिए बोलिए। सर जी, मेरे को 4 साल पहले डायग्नोज हुआ डायबिटिक। हाँ। और बीपी भी हो गया 140-100 रहता है लगभग मेरा बीपी। हाँ। पूरा क्योर हो जाएगा या रिवर्स भी कर जाएगा? हाँ, तो पहले डायबिटीज हुआ ना, तो आप डायबिटीज प्रोग्राम में पहले आए। पहले डायबिटीज हुआ ना, अभी ब्लड प्रेशर तो आपका इतना ज्यादा है नहीं, डायस्टोलिक थोड़ा सा ऊपर की तरफ में है। अब पहले डायबिटीज के प्रोग्राम में आएंगे ना, तो आपको दोनों चीजें मिल जाएगी। अलग अलग करने पड़ेंगे प्रोग्राम? नहीं, अलग करने
वैसे तो नहीं करना पड़ेगा आपको, आप डायबिटीज में आइए, उसके बाद आपको देते हैं सोल्यूशन। ज्यादातर लोगों को नहीं करना पड़ता, कोई अलग प्रोग्राम नहीं करना पड़ता, वो उसी में एड्रेस हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो उसके लिए लिंक आएगा मेरे पास। आप सर हाँ हाँ ग्रुप चैट में अपना नंबर शेयर कर दीजिए और आगे डायबिटीज बीपी लिख दीजिए। लिख दिया, डायबिटीज बीपी नंबर डाल दिया मैंने। ठीक है सर, बढ़िया। आपको रीच आउट करेंगे सर। राइट राइट। विपिन नंदा जी, आपका कुछ सवाल थे? इफ यू मिस्टर विपिन नंदा मिश्रा, राइट? Yes, sir. Go ahead. I've got the answers. I will talk individually. Right, sir. Please do share your phone numbers. Yes, yes. I am already a participant. All right. Thank you. Mr. Ram Nivas, आपके कोई अच्छा आपने तो सवाल पूछा है? Yes, sir. पूछ लीजिए सर। राइट सर। अच्छा, तो बाकी सभी लोगों को और आप लोगों के कुछ और भी सवाल रहे होंगे, आई एम श्योर। रवीना जी, आप भी अपना नंबर शेयर कर दें, हम इंडिविजुअली आपसे बातचीत करेंगे, कोई इशू नहीं। So Miss Ravina, I hope I'm addressing the right thing. Yeah, Mr. Sovalalji, I mean the session is over. There is nothing more that we need to share. सुतार जी, आप जा सकते हैं अगर आप जाना चाहें। अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको अगर इंटरेस्ट हो या सवाल हो तो हम आपको रीच आउट कर सकें। दैट्स ऑल। बाकी जिनको भी इंटरेस्ट है नंबर शेयर करें, पोल में रिस्पॉन्ड करें ताकि हम आपको गाइड कर सकें। जिनका इंटरेस्ट नहीं है तो वो हम बता। हाँ, आप कुछ सर 1 मिनट के लिए कुछ पूछना था। प्लीज। सुवालाल जयपुर से। बोलिए। मैं थोड़ा अभी जाना चाह रहा था, वैसे पूछना बहुत सारा था। आपके दिन में फोन आया था, कल बात हुई थी और मुझे ज्वाइन करना है आपसे। तो फ्यूचर में जब भी आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो उसके पहले पहले एक बार मेरे से संपर्क करके और जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी लेके और आपके साथ लाइन अप करने की जिम्मेदारी आपकी है। जी, नंबर शेयर कर दिया है सर, वो जिम्मेदारी मैंने जो चैट बॉक्स में लिख दिया है वैसे, और आपका जो ग्रुप है उसके अंदर मैं साथ में ऐड हूँ। ठीक है सर, हम आपको रीच आउट करेंगे। थैंक यू सर। ओके, नमस्कार। तो आपके और भी अगर कोई सवाल रहते हो सभी लोगों के, तो आपको सवाल या तो शेयर करें या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें अगर आप नहीं हैं अभी ऑलरेडी हिस्सा, और वहां पे अपने सवाल पूछ सकते हैं। या फिर हमने अभी नंबर शेयर किया है कुछ देर पहले, दीपक हैं इस प्रोग्राम के काउंसलर, तो दीपक का नंबर मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ। वो हमारी येलो स्कॉच टीम के ही बंदे हैं। तो उनका नंबर है 9625586597। आप उनको डायरेक्टली कॉल करके उनसे बातचीत कर सकते हैं। यू कैन कॉल हिम डायरेक्टली एंड यू कैन डिस्कस विद हिम, एंड यू कैन इफ यू हैव नॉट yet joined the WhatsApp group, please make sure that you do join. बाकी इतना ही है इस सेशन में, और आपसे जल्दी बातचीत होगी और आपको ज्वाइन कराएंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, शुभ रात्रि।